بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں ایک غریب مگر عجیب مزاج لوہار رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم سارا دن آگ کے سامنے بیٹھ کر لوہا کوٹتا، بہت محنت کرتا، مگر شام ہوتے ہی اپنی ساری کمائی اچھے کھانے، میٹھے پھل اور آرام دینے والے مشروب پر خرچ کر دیتا۔ اسے کل کی کوئی فکر نہ تھی، نہ گھر میں خزانہ تھا نہ سامان، مگر وہ ہر وقت خوش رہتا تھا۔ لوگ اسے بے وقوف کہتے تھے، مگر وہ ہنس کر جواب دیتا، جو آج ہنس لیا وہ کل کے غم سے بچ گیا۔ اسی زمانے میں بغداد کا بادشاہ سلطان مراد ایک دن بہت اداس بیٹھا تھا۔ دولت محل، نوکر سپاہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل بے قرار تھا۔ اس نے اپنے عقلمند وزیر عارف کو کہا، کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وزیر نے ادب سے کہا، حضور کبھی عام لوگوں کی زندگی دیکھیے، وہاں غریبی ضرور ہے مگر کچھ دل ایسے بھی ہیں جو بغیر تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ رات کو سلطان مراد، وزیر عارف اور غلام بلال بھیس بدل کر شہر سے باہر نکلے۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں ایک سریلی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص گاتے ہوئے کہہ رہا تھا، غم کو دروازے پر چھوڑ آؤ، روٹی کم ہو تو ہنسی زیادہ کھاؤ، جو دل سے خوش رہتا ہے وہی اصل میں جیتا ہے۔ سلطان اس آواز کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی نظر آ رہی تھی اور اندر ابراہیم لوہار کانچ کے ٹکڑے بجا بجا کر خوشی سے گا رہا تھا۔ سلطان نے بلال سے کہا، دروازہ کھٹکھٹا، شاید میرے غم کا علاج اسی آدمی کے پاس ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر سے ابراہیم نے غصے میں سر نکالا اور بولا، کون ہے جو میری خوشی میں دخل دینے آ گیا؟ سلطان نے نرمی سے کہا، ہم مسافر ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، رات گزارنے کی اجازت چاہیے۔ ابراہیم نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولا، اندر آ جاؤ، مگر کھانا میرا، گانا میرا اور سوال بالکل نہیں۔ سلطان، وزیر اور بلال خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ابراہیم خود کھاتا، ہنستا اور گاتا رہا۔ اس کی بے فکری دیکھ کر سلطان حیران رہ گیا۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، بھائی تم اتنے خوش کیسے رہتے ہو؟ ابراہیم نے فخر سے کہا، میں لوہار ہوں، روز 5-7 درہم کماتا ہوں، شام تک سب خرچ کر دیتا ہوں، پھر سکون سے سو جاتا ہوں، نہ کل کی فکر نہ خزانے کا غم۔ سلطان نے مسکرا کر پوچھا، اگر کل تمہیں کام نہ ملا تو؟ یہ سنتے ہی ابراہیم کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوری بولا، اے کالی زبان والے آدمی، ایسی بات دوبارہ مت کہنا، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ سلطان خاموش ہو گیا مگر دل ہی دل میں مسکرایا۔ صبح ہوتے ہی وہ محل واپس پہنچا اور فوری حکم جاری کر دیا کہ بغداد میں 3 دن تک تمام لوہاروں کی دکانیں بند رہیں گی۔ دوسری طرف جب ابراہیم شہر پہنچا اور اس نے یہ اعلان سنا تو وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اسے فوری رات والے مسافر کی بات یاد آ گئی۔ ابراہیم پریشان قدموں کے ساتھ شہر کے کوچوں میں چل رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر اس مسافر کی زبان اتنی کالی کیسے نکلی؟ ابھی کل ہی تو اس نے کام بند ہونے کی بات کی تھی اور آج واقعی پورے بغداد میں لوہاروں کی دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہا تھا، اگر وہ آدمی مجھے دوبارہ مل گیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، مگر غصہ کرنے سے پیٹ تو نہیں بھرتا تھا۔ شام ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی اور ابراہیم کو اپنی روز کی 5 درہم کی فکر ستانے لگی۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا پرانا دوست سلیم مل گیا جو ایک حمام میں کام کرتا تھا۔ سلیم نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ آج اتنے بجھے کیوں ہو؟ ابراہیم نے سارا قصہ سنا دیا۔ سلیم زور سے ہنسا اور بولا، بس اتنی سی بات، 3 دن میرے ساتھ حمام میں کام کر لو۔ یہ سن کر ابراہیم کی جان میں جان آ گئی۔ وہ فوری راضی ہو گیا۔ پورا دن اس نے حمام میں لوگوں کو پانی دینا، کپڑے اٹھانا اور صفائی کرنا شروع کر دی۔ شام تک اسے 5 درہم مل گئے۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی اس کے چہرے پر پھر وہی پرانی ہنسی واپس آ گئی۔ اس نے حسن معمول اچھا کھانا خریدا، پھل لیے اور آرام دینے والا مشروب بھی ساتھ لے لیا۔ رات کو وہ پھر کانچ کے ٹکڑے بجا بجا کر گانے لگا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ابراہیم دروازے پر گیا تو سامنے وہی 3 مسافر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تمہاری منحوس بات سچ ہو گئی۔ سلطان، وزیر اور بلال خاموشی سے اندر بیٹھ گئے۔ آج دسترخوان پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم خوب کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان تینوں کو برا بھلا بھی کہتا جا رہا تھا۔ آخر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا، لوہاروں کی دکانیں تو بند ہیں، پھر یہ سب کہاں سے آیا؟
इब्राहिम ने फखर से कहा, आज मैंने हम्माम में काम किया है, दुनिया में कामों की कमी नहीं। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, अगर कल हम्माम भी बंद हो जाएं तो। ये सुनना था कि इब्राहिम गुस्से से उछल पड़ा। वो जोर से बोला, बस अब एक लफ्ज भी मत कहना, तुम्हारी जुबान मनहूस है। सुल्तान ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, मगर दिल ही दिल में इसने अगला मंसूबा बना लिया था। अगली सुबह महल पहुंचते ही इसने पूरे बगदाद में ऐलान करवा दिया कि 3 दिन तक तमाम हम्माम भी बंद रहेंगे। जब इब्राहिम ने हम्माम बंद होने का ऐलान सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अब इससे यकीन होने लगा था कि वो अजीब मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं। वो परेशान हाल बाजार में घूमता रहा, मगर कहीं काम ना मिला। दिन ढलने लगा और पहली बार इसे अपने खाली हाथ होने का डर महसूस हुआ। आखिर थक हार कर वो घर वापस आया। घर में हर जगह नजर दौड़ाते हुए अचानक इसकी निगाह एक लंबे सफेद कपड़े पर पड़ी। वो कपड़ा कभी इसके मरहूम वालिद इस्तेमाल किया करते थे। इब्राहिम ने फौरी इसे उठाया, अच्छी तरह धोया और सर पर इस अंदाज से बांध लिया जैसे शहर के वकील और काजी के नुमाइंदे बांधा करते थे। फिर वो बाजार की तरफ निकल गया कि शायद कपड़ा फरोख्त कर कुछ पैसे मिल जाएं। रास्ते में एक औरत ने इसे देखा और फौरी इसके करीब आकर बोली, हुजूर, आप अदालत के वकील लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। इब्राहिम चौंक गया, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों में चमक आ गई। इसने संजीदा लहजे में कहा, हाँ हाँ बताओ, क्या मसला है। औरत रोने लगी और कहने लगी, मेरा शौहर मुझे बहुत कम खर्च देता है, आप इसे डराएं कि वो ज्यादा पैसे दिया करे। इब्राहिम ने फौरी मौका भांप लिया। वो बोला, फिक्र न करो, अभी तुम्हारे शौहर को सीधा करता हूं। औरत खुश हो गई और उसने 2 दिरहम इब्राहिम के हाथ पर रख दिए। इब्राहिम दिल ही दिल में हंसने लगा। औरत ने इसे अपने शौहर की दुकान का रास्ता बताया। इब्राहिम वहां पहुंचा, बड़ई को जोर से डांटा और बोला, मैं काजी का नुमाइंदा हूं, अगर आज के बाद तुमने अपनी बीवी को पूरे 5 दिरहम ना दिए तो सीधा कैद में डलवा दूंगा। वो आदमी खौफजदा हो गया और फौरी मुआफी मांगने लगा। फिर इसने 3 दिरहम निकाल कर इब्राहिम को दे दिए। अब 5 दिरहम पूरे हो गए थे। इब्राहिम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शाम होते ही इसने फिर अच्छा खाना खरीदा और अपने घर जा पहुंचा। रात को वो पहले से भी ज्यादा खुश होकर गा रहा था। जिसके पास अक्ल हो वो कभी भूखा नहीं सोता। इतने में फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वही 3 मुसाफिर अंदर आ गए। आज इब्राहिम बड़े फखर से उन्हें अपनी नई चालाकी के किस्से सुना रहा था। सुल्तान खामोश बैठा सब सुनता रहा। फिर इसने मुस्कुरा कर पूछा, अगर कल अदालत वालों ने जाली नुमाइंदों को पकड़ना शुरू कर दिया तो। ये सुनते ही इब्राहिम का रंग फक हो गया, मगर अगले ही लम्हे वो अक्कड़ कर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान मुराद के ऊपर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई थी। अगली सुबह सुल्तान मुराद ने वाकई हुक्म जारी कर दिया कि शहर में जितने भी काजी के नुमाइंदे और वकील हैं, सबके इजाजत नामे देखे जाएं। सिपाहियों ने मदरसे और अदालतों के बाहर पहरा बिठा दिया। जब इब्राहिम ने यह खबर सुनी तो उसके हाथ पांव फूल गए। अब इसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो अजीब मुसाफिर जरूर किसी बड़े राज से वाकिफ है। वो खौफजदा हालत में शहर की तरफ गया, मगर वहां हर जगह सिपाही खड़े थे। एक एक वकील का नाम पूछा जा रहा था। इब्राहिम खामोशी से भीड़ में से निकलने लगा, मगर एक सिपाही ने इसे रोक लिया। इजाजतनामा दिखाओ। ये सुनते ही इब्राहिम परेशान हो गया। वो बहाने बनाने लगा, मगर सिपाहियों ने फौरी इसे पकड़ लिया। काजी ने इसे खूब डांटा और दरबार से धक्के देकर निकाल दिया। मार खाने के बाद इब्राहिम बुरी तरह शर्मिंदा था। शाम तक वो शहर में उदास फिरता रहा। पहली बार इसे लगा कि शायद अब किस्मत इसका साथ छोड़ गई है, मगर फिर अचानक इसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें अलग करे। इसी वक्त इब्राहिम के दिमाग में एक नई तरकीब आ गई। इसने रास्ते से एक मोटा सा डंडा उठाया, सर पर साफा मजबूती से बांधा और गुस्से से दोनों के बीच जा खड़ा हुआ। फिर जोर से चीखा, खामोश, मैं शाही दारोगा हूं। इसकी ऊंची आवाज और रोबदार अंदाज देखकर दोनों आदमी फौरी रुक गए। आसपास खड़े लोग भी हैरान रह गए। एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, दारोगा साहब, आपने बड़ा अच्छा किया, ये लीजिए 5 दिरहम इनाम के तौर पर।
इब्राहिम ने फौरी पैसे पकड़े और दिल ही दिल में खुश होने लगा। इसे महसूस हुआ कि किस्मत ने फिर उसका साथ दे दिया है। वो दोनों लड़ने वालों को पकड़कर महल के बाहर खड़े असली सिपाहियों के हवाले कर आया। हैरत की बात यह थी कि सिपाहियों ने भी इसे वाकई दारोगा समझ लिया। शाम होते ही इब्राहिम फिर अपने घर पहुंचा, खाना खरीदा और पहले की तरह गाने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वही 3 मुसाफिर अंदर आए। इब्राहिम ने कहकहा लगाते हुए कहा, देख लिया, मैं हर मुश्किल से रास्ता निकाल लेता हूं। अब तो मैं शाही दारोगा बन गया हूं। सुल्तान मुराद ये सुनकर हैरान रह गया, मगर उसके ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। अगली सुबह सुल्तान मुराद ने अपने खास सिपाहियों को हुक्म दिया कि नए दारोगा को फौरी महल में पेश किया जाए। जब इब्राहिम को यह खबर मिली तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कभी वो खुश होता कि शायद इसे इनाम मिलने वाला है, और कभी खौफजदा हो जाता कि कहीं इसकी हकीकत ना खिल जाए। बहरहाल वो डरता कांपता महल पहुंच गया। दरबार में 4 सिपाही और 4 कैदी खड़े थे। सुल्तान मुराद अपने चेहरे पर कपड़ा डाले तख्त पर बैठा था ताकि इब्राहिम इसे पहचान ना सके। सुल्तान ने सख्त आवाज में कहा, आज तुम चारों दारोगों का इम्तिहान होगा। जो अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर साबित हुआ, इसे बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन जो नाकाम हुआ, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये सुनकर इब्राहिम के हाथ कांपने लगे। इसके पास तो लकड़ी की जाली तलवार थी। पहले 3 असली दारोगों ने अपनी तेज तलवारों से 3 कैदियों की गर्दनें उड़ा दी। अब सिर्फ एक कैदी बाकी रह गया था और सबकी नजरें इब्राहिम पर थीं। इब्राहिम को समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे। अगर इसने लकड़ी की तलवार निकाली तो फौरी पकड़ा जाएगा, और अगर कुछ न किया तो जान से जाएगा। अचानक इसके जहन में एक जबरदस्त तरकीब आई। वो आगे बढ़ा, कैदी के करीब खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, मेरी तलवार आम तलवार नहीं, ये सिर्फ मुजरिम को सजा देती है। अगर सामने वाला बेगुनाह हो तो ये लकड़ी बन जाती है। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान मुराद बमुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। इब्राहिम ने फौरी अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और कैदी के कंधे पर मारी। फिर जोर से चलाया। देखा, यह आदमी बेकसूर है, इसीलिए तलवार लकड़ी बन गई। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अचानक सुल्तान, वजीर आरिफ और गुलाम बिलाल जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने ऊपर से कपड़ा नीचे किया। इब्राहिम उन्हें देखते ही हैरत से पीछे हो गया। वो फौरी समझ गया कि यही वो 3 मुसाफिर थे। सुल्तान हंसते हुए बोला, इब्राहिम, तुम वाकई अजीब आदमी हो, हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेते हो। इब्राहिम शर्मिंदा होकर सर नीचे करके खड़ा हो गया, मगर अभी इसे मालूम नहीं था कि इसकी किस्मत बदलने वाली है। दरबार में हर तरफ हंसी गूंज रही थी। सुल्तान मुराद अपनी हंसी पर काबू पाते हुए तख्त से नीचे उतरा और इब्राहिम के करीब आकर खड़ा हो गया। इब्राहिम खौफजदा था। इसे यकीन था कि अब इसकी सजा का ऐलान होने वाला है। वो कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने झूठ बोले लोगों को धोखा दिया, मगर मैंने ये सब सिर्फ अपने रोजगार के लिए किया था। मुझे मुआफ कर दीजिए। चंद लम्हों तक दरबार में खामोशी छाई रही। फिर अचानक सुल्तान मुराद मुस्कुराया और बोला, इब्राहिम, तुमने गलतियां जरूर की, मगर एक बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। हर बार मुश्किल आने पर तुम रोने के बजाय नया रास्ता ढूंढते रहे। तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये सुनकर दरबार के लोग हैरान रह गए। सुल्तान ने वजीर आरिफ की तरफ देखा और कहा, ऐसे लोग कम होते हैं जो मुसीबत में भी हंसना जानते हो। फिर सुल्तान ने ऐलान किया, आज से इब्राहिम को शाही निगरानी के महकमे में एक बड़ा ओहदा दिया जाता है। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरत से एक दूसरे को देखने लगा। इब्राहिम को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे लोग बेवकूफ लोहार कहते थे, आज वो शाही महल में इज्जत पा रहा है। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फौरी सुल्तान के कदमों में झुक गया और बोला, हुजूर, आज के बाद मैं कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा। सुल्तान ने इसे उठाया और कहा, बस एक बात हमेशा याद रखना, अक्ल सिर्फ किताबों में नहीं होती, कभी कभी जिंदगी सिखा देती है कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद इब्राहिम महल से बाहर निकला तो पहली बार बगदाद के लोग इसे इज्जत की निगाह से देख रहे थे। वही लोग जो कल तक इसे बेवकूफ कहते थे, आज इसकी तारीफें कर रहे थे।
शाम ढल रही थी, आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी छा रही थी और इब्राहिम अपने घर की तरफ जाते हुए धीरे धीरे वही पुराना गीत गा रहा था, मगर आज इसकी आवाज में पहले से ज्यादा सुकून था। वो समझ गया था कि खुश रहना अच्छी बात है, मगर अक्ल और ईमानदारी के साथ जीना इससे भी ज्यादा जरूरी है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था कि इंसान अगर हिम्मत ना हारे और मुश्किल वक्त में अपना हौसला कायम रखे तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है।